So let's start with the very basic things about atomic structure. If I give you a brief overview of atomic structure, so the most recent model that we look today, in the center there is a dense core nucleus, positively charged nucleus surrounded by negative charge light mass particles which are called electrons, and there is huge gap between electrons and nucleus. So most of the space in the atom is empty. This was put forward by Rutherford in 1909. Okay? Rutherford also discovered proton, he discovered nucleus, and he presented the present atomic model. Okay? He did gold foil experiment, and for that you need to revise that from your O levels. अब Rutherford experiment आप O level से खुद revise करोगे. ठीक है? अच्छा. The next thing is कि he found out कि there are two main things in an atom. Of course, we know that protons, neutrons, and electrons are there. One interesting thing: protons were discovered by Rutherford in 1909. Neutrons were discovered by James Chadwick in 1934. न्यूट्रॉन 1934 में डिस्कवर हुए थे. रदरफोर्ड को नहीं पता चला था कि न्यूट्रॉन होते हैं. व्हाट वाज द रीज़न कि भाई न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल हैं, तो उसका तो पता ही नहीं चल रहा था. इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये जे थॉमसन ने डिस्कवर किए थे 1897 में. तो ये 1897 में डिस्कवर हुआ, फिर ये 1909 में डिस्कवर हुआ, और ये फिर 1934 में जाके जो है वो डिस्कवर हुआ. और एटम की जो आखिरी चीज़ जो डिस्कवर हुई है वो 1994 में डिस्कवर हुई है. क्वार्क्स में से एक क्वार्क 1994 में डिस्कवर हुआ था, और फर्स्ट क्वार्क 1934 में डिस्कवर हुआ, और लास्ट 1994, मतलब इसमें 60 ईयर्स लग गए सारे क्वार्क्स को डिस्कवर करने में. क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन क्वार्क्स से मिलकर बनते हैं. तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू नो कि भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस चीज़ से मिलकर बने हैं. राइट? ओके, सो इफ़ वी लुक एट प्रेजेंट atomic model, so everyone knows about this: protons, neutrons, and electron. Nucleus क्या होता है? Nucleus is not a chamber or place, it is just the combination of protons and neutrons. Right? Okay. Then we look upon their relative masses and charge. Proton is having a charge, standard charge of 1.6 10 to the minus 19. This will be given in the data booklet, and its mass in kg, it will again given in data booklet, 1.67 in 10 to the minus 27. Neutron charge is 0. Electron and proton have same charge but opposite sign. And then the mass, electron is very less massive, 9.11 10 to the minus 31. All this data would be given to you in the insert sheet. But you need to know one thing, कि न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवियर देन प्रोटॉन. तो अगर तीनों में से हम देखें तो न्यूट्रॉन इज द हैवीएस्ट पार्टिकल, 1.675 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27. सेकेंड प्लेस इज प्रोटॉन, 1.673 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27. एंड द लाइटेस्ट पार्टिकल और निग्लिजिबल मास इलेक्ट्रॉन की होती है. ओके, दिस इज देयर रिलेटिव मैसेस. रिलेटिव मैसेस मीन, रिलेटिव चार्ज मीन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. ठीक है? तो प्रोटॉन का चार्ज +1 होता है, न्यूट्रॉन 0, इलेक्ट्रॉन -1. रिलेटिव मास प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 1, एंड इलेक्ट्रॉन इज 1/2000 ऑफ द मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन विच इज नेग्लिजिबल. राइट? लाइक अगर 2000 इलेक्ट्रॉन्स मिलें तो वो फिर एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के इक्वल आते हैं. तो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन इज हैविंग नेग्लिजिबल मास. ओके, स्टेबल एटम is neutral. So every matter is made up of atoms. तो जितने भी atoms हैं, like आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं सब atom से मिलकर बनी हैं. तो normally ये जो atoms होते हैं ये क्या होते हैं? ये neutral होते हैं, stable होते हैं. stable का मतलब है कि इनके अंदर protons और electrons बिल्कुल equal amount में होते हैं. ठीक है? अच्छा, next thing is very important. This is a new thing for you. स्पेसिफिक चार्ज. किस जा रहे हो? दरवाज़ा बंद करने के लिए कहा है. स्पेसिफिक चार्ज. अच्छा, व्हाट इज स्पेसिफिक चार्ज? चार्ज का तो हमें पता है. अब स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? स्पेसिफिक चार्ज इन फिजिक्स इज चार्ज टू मास रेशियो. Charge to mass ratio. Like, look, if proton is there, proton is having a charge value and having a mass value. So when you divide charge of anything with its mass, so that particular thing is known as specific charge. So specific charge is
ratio. It is the ratio, and it is, let's say, the ratio of total charge of particle to its mass. So this is the definition of specific charge. And what is its symbol? Q by m. Specific charge is Q by m. Q is charge, m is mass. What should be its unit? What should be the unit of specific charge? Huh? Mass per coulomb. Good. kg per coulomb यार, mass per coulomb क्या? Unit kg per coulomb. So kg per coulomb is the unit of it. स्पेसिफिक चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं? सब लोग ओपन अप योर नोटबुक्स बेटा, एवरीवन ओपन अप योर नोटबुक्स. ये आपने अब कैलकुलेट करना है. आज मेरा लिखने वाला काम कोई नहीं है. आई विल नॉट बी राइटिंग ऑन इट. आप लिख रहे होंगे, वो मैं लेता हूं ना क्लास के एंड पे. ओके बेटा, फॉर्मूला लिखें. स्पेसिफिक चार्ज इज इक्वल टू क्यू बाय एम. लिखें फॉर्मूला. ये वैसे नोट्स हैं, ग्रुप में नोट्स पड़े हुए हैं, लेकिन अभी हमने एक कैलकुलेशन करनी है, तो आप एक कैलकुलेशन कर रहे हैं. स्पेसिफिक चार्ज इज क्यू बाय एम, राइट, और इसकी यूनिट कूलम पर किलोग्राम है. ओके अच्छा, अब देखो बेटा, आप प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज निकालो कितना है, और इलेक्ट्रॉन का निकालो. दोनों का आपने स्पेसिफिक चार्ज निकालना है बेटा. अगर आप सुनेंगे तो आखिरी होगा यार. अब मसला ये है कि आप लोग बिल्कुल फोकस ही नहीं कर रहे, आउट ऑफ फोकस हैं. ओके तो बेटा यहां पे निकालो जरा मुझे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज फाइंड करके दिखाओ कितना आता है. जल्दी से कैलकुलेट करो. एवरीवन डू द कैलकुलेशन. फाइंड स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. चार्ज ओवर मास. बेटा एक सेकेंड, होल्ड ऑन एवरीवन. एक दफा जरा सारे खामोश हो जाएं. एटॉमिक फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं, लास्ट टॉपिक है. इसके नोट्स मैंने ग्रुप में भेजे हुए हैं. जो मैं यहाँ पे स्टोरी सुना रहा हूँ ये सुननी है गौर से. जहाँ मैं कैलकुलेशन करने के लिए कहूँगा वहाँ आपने कैलकुलेशन करनी है. जो चीज़ नहीं समझ आएगी आप मुझसे पूछोगे. दीज आर द सिंपल रूल्स फॉर नेक्स्ट 50 मिनट्स एंड नो डिस्टर्बेंस प्लीज़. अगर किसी ने बात करनी है अभी प्लीज़ उठ के बाहर चला जाए. आई वुड नॉट माइंड. अगर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, बातें करेगा, अभी चला जाए बाहर यार. हाँ ओपन ऑप्शन है, जाना है चले जाओ बाहर, वाकई चले जाओ. ठीक है, बजाय इसके कि मैं बाहर भेजूं आप खुद चले जाओ, वो ज़्यादा बेहतर है. फिर बाद में अच्छा नहीं लगेगा ना, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा. ओके सो यू ऑल एग्री कि 50 मिनट आप आराम से बैठेंगे तहम्मुल से और मेरी बात सुनेंगे और काम करेंगे. और जो चीज़ नहीं समझ आएगी वो आप मुझसे पूछेंगे. हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ अभी तक हमने पढ़ी है, एटम का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है. थोड़ा सा मैंने आपको उसका बैकग्राउंड बताया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का. अभी हम पहली नई इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर आए हैं, स्पेसिफिक चार्ज. तो सब लोग स्पेसिफिक चार्ज का फार्मूला लिख लें. लिखें स्पेसिफिक चार्ज इक्वल क्यू बाय एम. ये इसका फार्मूला है, क्यू बाय एम. चार्ज टू मास रेशियो इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज. और अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि फाइंड स्पेसिफिक चार्ज फॉर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. न्यूट्रॉन का नहीं है क्योंकि उसका चार्ज 0 है. ओके तो चलें निकालें जरा प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज. चार्ज की वैल्यू लिखें डिवाइडेड बाय मास, और इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज की वैल्यू डिवाइडेड बाय इट्स मास. कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताओ. डिवाइडेड बाय बेटा, स्पेसिफिक चार्ज इज चार्ज डिवाइडेड बाय मास, कूलम पर किलोग्राम. और जल्दी से फाइंड करो. फाइंड करने के लिए इसलिए कह रहा हूं आप गो थ्रू हो जाओ, आपके माइंड में बैठ जाए कि ये क्या चीज है स्पेसिफिक चार्ज. ठीक है, एक सिंपल टर्म है. क्यों सोफिया, क्लियर? व्हाट्स द आंसर? 7. ओके फॉर दिस. और इलेक्ट्रॉन माइनस नहीं लेना, चार्ज को माइनस नहीं लेना आपने, बस सिंपल चार्ज की मैग्नीट्यूड यूज करनी है. ठीक है, तो किसका चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा है? प्रोटॉन का ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है? प्रोटॉन का ज्यादा है. गुड, ठीक हो गया. ओके बस इतना सा चाहिए हमें ये कैलकुलेशन, नथिंग एल्स इन इट. यही आया ना, इलेक्ट्रॉन 1.76 10^11 और प्रोटॉन 9.58 × 10^7. यही आया ना वैल्यूज. ठीक है, ठीक है, इट्स फाइन.
ओके, नेक्स्ट थिंग बेटा, प्लीज मेरी बात सुनो यार, ये बहुत सिंपल टॉपिक है एंड आई रियली वांट कि मैक्सिमम हम अभी कवर कर लें। बाकी हम फ्राइडे, आज रात, कल और परसों 40 मिनट की ऑनलाइन क्लास में मैं कवर कराऊंगा और वो बिल्कुल मैंडेटरी है, सब लोग वो क्लास अटेंड करेंगे ताकि संडे को हम ये ख़त्म कर लें और मंडे को यहाँ आएँ। मंडे से आपका एक क्रैश कोर्स स्टार्ट हमने करना है जो 2 वीक्स का होगा और उसमें आपकी डबल क्लास होगी और कोई क्लास आप मिस नहीं करेंगे। उसमें मैं आपको सारी प्रॉपर रिवीजन कराऊंगा, हैंडआउट्स दूंगा, रिवीजन नोट्स दूंगा, शॉर्ट नोट्स दूंगा, मतलब एवरी डिटेल जो पहले उस तरीके से हमने नहीं पढ़ा, अब हम मेथड चेंज करेंगे। लेक्चर बेस्ड नहीं होगा, ठीक है, जस्ट हम गो थ्रू करेंगे और आप शॉर्ट नोट्स देके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मेन। ओके, सो नेक्स्ट इज AZX नोटेशन, एटॉमिक नोटेशन भी इसको कहते हैं। यू मस्ट बी फेमिलियर विद इट, इट्स वेरी सिंपल थिंग। दिस इज द न्यूक्लियर नोटेशन, ठीक है, और इसमें A जो है वो न्यूक्लियर नंबर होता है, Z प्रोटॉन नंबर होता है और ये उस एलिमेंट की सिंबल होती है। अगर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताने हैं तो दैट इज Z, और आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बताने हैं दैट इज A। अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताना है तो A माइनस Z। आई होप आपको ये पता होगा, ये तो केमिस्ट्री की ABC है, बिल्कुल नहीं पता तो सर इशफाक बता देंगे आपको फिर अच्छे तरह से। ओके, नेक्स्ट इज आइसोटोप। आइसोटोप भी आपको पता है, इज अ केमिस्ट्री थिंग, बस पार्टिकल फिजिक्स है ना, दैट्स व्हाई। ओके, so nuclei having same number of protons but different number of nucleons or neutrons. So what is the particle that make isotopic form? Neutrons. तो इसका मतलब है कि न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो जाते हैं जिसकी वजह से उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वो चेंज हो जाती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज की लुक्स चेंज हो जाती हैं लेकिन अंदर इंटरनल केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी सेम रहती हैं। क्यों? क्योंकि उसका प्रोटॉन नंबर सेम होता है, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स ऑन प्रोटॉन नंबर और चार्ज नंबर। ओके, ये अब हाइड्रोजन है, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम, ठीक है, प्रोटियम, ये प्रोटियम कहते हैं इसको, H11 21 31। तो व्हाट इज द डिफरेंस? न्यूट्रॉन। यहाँ पे 1 न्यूट्रॉन है, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है, 1 - 1 0। इसमें 1 न्यूट्रॉन है और इसमें 2 न्यूट्रॉन्स हैं। ये जो ड्यूट्रियम होता है ये फ्यूजन में भी यूज होता है। सन के अंदर जो सबसे ज्यादा अभी भी एलिमेंट है इस टाइम वो ये ड्यूट्रियम है, हाइड्रोजन है, जिसकी फ्यूजन होके फिर हीलियम बन रही होती है और फ्यूजन से फिर एनर्जी, हमें ये सारी जो हमें एनर्जी मिल रही है दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हाँ, उसमें भी यूज होता है, एग्जैक्टली। ओके, सो ये दिस एवरीथिंग इज रिलेटेड टू आइसोटोप। सो आई एम जस्ट लीविंग इट क्योंकि ये बिल्कुल एक सिंपल सी चीज बार बार लिखी हुई है। ओके, यू नो आइसोटोपिक फॉर्म की अबंडेंस भी डिफरेंट होती है। दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन। ऑक्सीजन O16 जो है ये सबसे ज़्यादा ये प्रेजेंट है नेचर में, और उसके बाद ये बाकी इनकी अबंडेंस है। सबसे कम जो है वो O17 है। तो देखें, ये जो आइसोटोपिक फॉर्म्स होती हैं ये डिफरेंट अमाउंट्स में होती हैं। जिस तरह यूरेनियम की अगर हम बात करें तो यूरेनियम की 3 आइसोटोपिक फॉर्म्स हैं, 235, 236 और 238। 236 नेचुरली अवेलेबल नहीं है, आर्टिफिशियली हम जनरेट करते हैं। जब एटॉमिक बॉम्ब के अंदर फिजन होनी होती है या न्यूक्लियर रिएक्टर में फिजन होनी होती है तो हम यूरेनियम 235 को एक न्यूट्रॉन से कोलाइड करवाते हैं। एक न्यूट्रॉन आता है, उसको हिट करता है, उसमें एम्बेड हो जाता है और वो यूरेनियम 236 बन जाता है। और वो मोस्ट अनस्टेबल है, एकदम से वो ब्रेक हो जाता है और साथ ह्यूज अमाउंट में एनर्जी निकलती है। तो यूरेनियम 236 जो है वो नेचर में अवेलेबल नहीं है, आर्टिफिशियली हम जनरेट करते हैं। लेकिन नेचर में सबसे ज़्यादा जो अवेलेबल है वो यूरेनियम 235 है और उसके बाद 238 है। अब जब ये रॉ मटेरियल में ज़मीन में से निकालते हैं माइनिंग करके तो वो सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं, फिर उसको अलग करना होता है। तो एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, उसके अंदर आइसोटोप को डालते हैं, उसको घुमाते हैं तो डिफरेंट जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो डिफरेंट अमाउंट एक डिफरेंट जगहों पे कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर जो है वो इन पार्टिकल्स को अलग अलग किया जाता है। तो जब लेट्स से अब पाकिस्तान जब एटॉमिक पावर बना था तो मेन मसला क्या था? सेंट्रीफ्यूज मशीन नहीं थी और वो रेयर मशीन होती है, कोई भी वो नहीं देता। लेट्स से अमेरिका या जर्मनी या यूके या रशिया या चाइना जिनके पास ऑलरेडी थी वो तो नहीं दे रहे थे क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रीटी है कि भाई आपने किसी को नहीं देनी है क्योंकि वो एटॉमिक बॉम्ब बना सकते हैं इससे। तो वो उसमें ये हुआ था कि पाकिस्तान ने फिर खुद डॉक्टर अकीब खान जो है
हॉलैंड से वो छोड़ के वहाँ से इधर आए थे और इधर आके उन्होंने खुद जो है वो सेंट्रीफ्यूज मशीन खुद बनाई थी। तो ये उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूज मशीन बनी थी तो उसके बाद फिर ये सारा कुछ हुआ था, न्यूक्लियर पावर और ये सब कुछ। अगर वो ना होती तो फिर नहीं हो सकता था। अच्छा आगे चलते हैं। ये जस्ट कैलकुलेशन है, जस्ट कैलकुलेशन, ये एग्जाम्पल है, जस्ट लीव दैट एग्जाम्पल एज वेल, क्योंकि हमने क्वेश्चंस करने हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, सेकेंड न्यू थिंग टुडे। फर्स्ट थिंग वाज स्पेसिफिक चार्ज Q by m एंड सेकेंड न्यू थिंग इज दिस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा बेटा, जो नेचर में ना देयर आर 4 फोर्सेज इन नेचर, natural forces, natural. Number 1 is gravitational force which exists between every two mass, whether small or large. Second force is weak nuclear force. This is inside the atom, inside the nucleus. Third is strong nuclear force. This is again inside the atom. So two forces are inside the atom. Strong nuclear force, weak nuclear force. The fourth force is electromagnetic force, which is also called electrostatic force, electrical force between charges. So electrostatic force is between charges. Why? Because everything is made up of atom, and inside the atom is positive and negative charge. Protons bhi hain, electrons bhi hain. So it means that in the whole nature, in the whole universe, 4 fundamental forces are there. These are called fundamental forces which are present by nature. Humans have no contribution towards them. ठीक है? So gravitational force, which is between masses, which is weak force. Second is weak nuclear force. This is weak. This is inside the nucleus. This is responsible. Weak nuclear force is responsible for alpha, beta, gamma decay. Decay इस weak nuclear force की वजह से होते हैं. Third force is strong nuclear force. जो हमने पढ़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स ये वाली है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और लास्ट जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो चार्जेस के बीच में होती है। लेट्स से इलेक्ट्रॉन क्यों मूव कर रहे हैं न्यूक्लियस के गिर्द? क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, वो उसको अपनी तरफ खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है। दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना होती तो कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ ना रहता, ठीक है, वो सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते, राइट। अच्छा, अब बेटा हमने इनमें से पढ़नी है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब एक चीज इमेजिन करो, आज आपको विजुअलाइज ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि मैं लिख नहीं रहा यहां पे। अच्छा देखो, एटम के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इमेजिन दीज टू आर द प्रोटॉन्स। सो इन प्रोटॉन्स, ये प्रोटॉन्स हैं 2, क्या 2 प्रोटॉन ऐसे आराम से रह सकते हैं? क्यों नहीं रह सकते? लाइक चार्जेस रिपेल। एंड वन थिंग, द रिपल्सिव फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर। आप अगर शॉर्ट नोट्स अपने बना लें तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा, शॉर्ट बिल्कुल, ठीक है। कि लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्सेस बिटवीन प्रोटॉन्स, फोर्सेस इनसाइड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर कितनी फोर्स? सबसे पहली फोर्स कौन सी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पॉजिटिव पॉजिटिव प्रोटॉन रिपेलिंग ईच अदर, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। सेकेंड फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फीचर ऑफ मास। बोथ द प्रोटॉन्स आर अट्रैक्टिंग, लेकिन वो वीक फोर्स है। ग्रेविटेशन फोर्स इज वेरी वीक बट रिपल्सिव फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो टेक्निकली क्या होना चाहिए? प्रोटॉन्स शुड नॉट स्टे ओवर देयर, प्रोटॉन को यूं चले जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं होते, कभी भी ऐसे नहीं होते। क्यों? बिकॉज देयर इज अ थर्ड फोर्स प्रेजेंट विच इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसको न्यूक्लियर जेल भी कहते हैं, न्यूक्लियर जेल या न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं। ये वो न्यूक्लियर जेल है जिसने इनको होल्ड करके रखा हुआ है कि भाई आपने अलग नहीं होना, आपने इकट्ठा रहना है, ठीक है। इमेजिन करो आपके पास बहुत सारे मार्बल बीड्स हैं। आप मार्बल बीड्स के बीच में आपको मैं थोड़ी सी ग्लू देता हूँ कि यार ये लो ग्लू। आप ग्लू लगाते हो और ग्लू एक एक मार्बल बीड के बीच में लगा के सब मार्बल बॉल्स को आपस में आप बीड्स को कनेक्ट कर देते हो। तो वो जो ग्लू बीच में है वो क्या है? न्यूक्लियर ने इसको होल्ड करके रखा हुआ है ना सारे मार्बल्स को। तो वो जो ग्लू है उसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स, न्यूक्लियर जेल या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहेंगे, ठीक है। सो ये इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू। और वन मोर थिंग, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज ओनली इनसाइड द न्यूक्लियस, राइट। ये न्यूक्लियस से बाहर नहीं है, ये बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स है, इसकी रेंज बड़ी शॉर्ट है, ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर लगती है बस, न्यूक्लियस से बाहर नहीं लगती, ठीक है। ओके, सो लेट्स रीड इट। In the nucleus, there are repulsive electrostatic forces between protons due to their charge and strong gravitational force between, not strong, attractive gravitational force due to their masses.
Gravity is the weakest force in the fundamental forces and it has negligible effect as compared to electrostatic force. जो मैंने बताया सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है. If these were the only two forces, the nucleus would not hold together. ज़ाहिर है वो इलेक्ट्रिक फोर्स उनको दूर ले जाती. So we say therefore there must be an attractive force acting between all the nucleons which is stronger than the electrostatic force. This force is called strong nuclear force, right? So strong nuclear force acts between the particles called quarks. अच्छा quarks क्या होते हैं ये मैंने अलग से आज मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ, फिर जो इसमें थोड़ी सी एडवांस चीज़ें जिसमें मुझे वर्किंग की ज़रूरत होगी वो मैं ऑनलाइन लेक्चर जो है उसमें करूँगा ताकि मैं आराम से लिख के आपको सारा समझा सकूँ. क्वार्क्स के बारे में एक वैसे व्यू आपको दे देता हूँ, आपको शायद किसी को पता भी हो. क्वार्क्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स. सबसे छोटे, फंडामेंटल होता है जो सबसे छोटा हो जिसको मजीद ब्रेक ना कर किया जा सकता हो. और क्वार्क्स 6 टाइप्स के हैं, टोटल 6 टाइप्स हैं क्वार्क्स के. ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया कि 1934 में ये पहला डिस्कवर हुआ था और लास्ट 1994 में डिस्कवर हुआ था. ठीक है, तो इसको अप क्वार्क कहते हैं, डाउन क्वार्क कहते हैं, स्ट्रेंज क्वार्क कहते हैं, चार्म क्वार्क कहते हैं और एक और क्या कहते हैं, टॉप क्वार्क कहते हैं और बॉटम क्वार्क कहते हैं. तो 6 नेम्स हैं जो साइंटिस्ट ने दिए हैं. अजीब से नाम है लेकिन तरीके भी अजीब से दिए हैं. एक ऑस्ट्रियन फिजिस्ट था, उसने क्वार्क डिस्कवर किया था. अब उसने नाम देना था कि मुझे पार्टिकल तो पता लग गया है, अब मैं नाम क्या रखूं इसका. देखो लोगों ने नाम रखे ना खुद से. तो वो उसके घर के बाहर एक पॉन्ड था, वहाँ पे बहुत सारी डक्स थी. ठीक है, तो वो बड़ा शोर कर रही थी, क्वाक क्वाक कर रही थी. उसने कहा लो भाई क्वाक रख दो नाम, तो उसने क्वाक नाम रख दिया. ठीक है, और उसके बाद कुछ डक्स सही सीधी तैर रही थी, कुछ उस पानी में उल्टी हुई पड़ी थी, कुछ जो है वो हिल के ऊपर जा रही थी, कुछ नीचे थी, कुछ बड़ा अजीब से वे में बिहेव कर रही थी जैसे आप में से कुछ लोग करते हैं. ठीक है, तो स्ट्रेंज उसने नाम रख दिया, चार्म रख दिया, टॉप रख दिया, बॉटम रख दिया. तो डिफरेंट उसने नाम उसने और बाद में भी उसने सारे तो नहीं डिस्कवर किए थे, स्टार्ट उसने किया था. ओके, एनीवेज आगे चलते हैं. तो क्वार्क्स क्या बनाते हैं बेटा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन. आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क से बनता है. ठीक है, 3 क्वार्क्स मिलते हैं और प्रोटॉन बनता है. ये हम आगे बाद में मैं आपको बताऊंगा ये चीजें. ओके, अभी आगे चलते हैं फिलहाल नेक्स्ट चीज के ऊपर. अच्छा, ये उसी की इलस्ट्रेशन है बेटा. यहां देखो, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन एरो से पता लग रहा है कि ये बड़ी वीक है क्योंकि लेंथ ऑफ एरो इज वेरी शॉर्ट. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स है बिटवीन न्यू प्रोटॉन्स है और ये जरा लॉन्गर एरो शो कर रहा है कि ये बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स है. तो इसलिए एक न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स चाहिए जो इनको होल्ड करके रखे. ठीक है, अच्छा अब ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग बनाएंगे क्योंकि इस ग्राफ से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. अच्छा बेटा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की पहली प्रॉपर्टी हमें क्या पता लगी, क्या होती है ये? This is very strong force that exists inside the nucleus only. ये एक नेचर में कहाँ है, ये हर एटम के अंदर है. हर एटम के अंदर कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर है. और न्यूक्लियस कितना होता है, न्यूक्लियस वेरी टाइनी होता है. न्यूक्लियस जो है वो तकरीबन 10⁻⁻15 मीटर का होता है. 10⁻⁻15 मीटर, इसको फेम्टोमीटर भी कहते हैं. ठीक है, मतलब बहुत ही टाइनी है न्यूक्लियस. उसके अंदर हर एटम के न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है. और न्यूक्लियर फोर्स क्या है, शॉर्ट. ये पहली चीज़ ये हो गई कि ये होल्ड करके रखती है न्यूक्लियॉन्स को. दूसरी चीज़ ये हो गई कि ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, ओनली एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस से बाहर ये नहीं हो सकती. अगर ये न्यूक्लियस से बाहर होती तो ये इलेक्ट्रॉन्स को भी खींच लेती है अपनी तरफ, ये हर चीज़ को खींच लेती है अपनी तरफ. तो फिर लाइफ फिर पॉसिबल ना होती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे, बहुत काम आता है इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को फ्री रखने के लिए कि वो घूमता रहे, इसलिए ये शॉर्ट रेंज फोर्स होती है. ओके, सो अब इसका ज़रा इसको स्ट्रॉन्ग इस फोर्स को ज़रा प्लॉट करते हैं, देखते हैं इसका स्केच क्या है. ये ग्राफ बेटा आप लोग बना लें, मेक दिस ग्राफ. इसमें वाई एक्सिस पे है फोर्सेस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स. बेटा ये ग्राफ सब लोग बना लो, एक दफ़ा बनाओगे तो जेहन में बैठेगा, ये देखने से नहीं बैठेगा. सो वाई एक्सिस इज फोर्सेस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्सेस, और ये न्यूटन में है. पॉजिटिव साइड पे रिपल्सिव फोर्सेस हैं, रिपल्सिव, और नेगेटिव साइड पे अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं. देखो 3 चीज़ें हैं वाई एक्सिस पे. वन इज फोर्सेस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स. पॉजिटिव साइड पे क्या है, रिपल्सिव फोर्स. रिपल्सिव फोर्स क्या होती है सोफिया? न्यूक्लियस के अंदर कौन सी फोर्स रिपल्सिव है, नाम क्या है उसका?
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोटॉन के चार्ज की वजह से है। अब ये क्या मुश्किल चीज है? नहीं ना। अच्छा, अट्रैक्टिव फोर्स कौन सी है? दो हैं, दो फोर्सेस अट्रैक्टिव हैं। एक है ग्रेविटेशनल फोर्स जो बड़ी वीक है, लेकिन एक और फोर्स है जो बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। बस, तो क्या ये मुश्किल है चीज? यही उसने पूछना है कि कितनी रिपल्सिव फोर्सेस हैं, कितनी अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। ओके, अब एक बड़ी स्ट्रेंज सी बात है कि इसका जो जो अट्रैक्टिव फोर्स है ना, उसमें वेरिएशन है। वो मतलब न्यूक्लियस के अंदर हर जगह सेम नहीं है, राइट? तो ये एक्स एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है? न्यूक्लियर सेपरेशन या डिस्टेंस, फेम्टोमीटर, फेम्टो -15 होता है। तो एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस है, वाई एक्सिस पे फोर्स है। अब आप देखो, अगर हम लेट से न्यूक्लियर सेपरेशन का मतलब क्या है कि दो प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स के बीच में कितना गैप है, राइट? तो अगर हम देखें 0.5 का गैप 0.5 हो, तो यहां पे ये फोर्स जो है वो क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है, क्योंकि ये जीरो है। अगर 0.5 से कम हो तो ये रिपल्सिव फोर्स होती है। ये एक और स्ट्रेंज बिहेवियर आ गया इस फोर्स का। अभी मैंने कहा था ना कि ये जो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है ये सिर्फ क्या है? अट्रैक्टिव है, लेकिन 0.5 से अगर कम डिस्टेंस होगा तो फिर ये रिपल्सिव हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? रिपल्सिव। देखो, वेरी शॉर्ट रेंज रिपल्जन क्लोजर देन 0.5 फेम्टोमीटर। अगर प्रोटॉन दो या न्यूट्रॉन 0.5 फेम्टोमीटर से ज्यादा क्लोज हैं आपस में, तो फिर ये रिपल्सिव फोर्स होगी। ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर डिस्टेंस कम होगा तो पार्टिकल्स आपस में क्रैश कर जाएंगे। जब क्रैश करेंगे तो नया पार्टिकल बन जाएगा। इसलिए इसका डबल काम है। इस फोर्स ने ना तो उनको क्रैश होने देना है, ना उनको दूर जाने देना है। दोनों काम ये कर रही है, ठीक है? और हर एटम के अंदर ये काम हो रहा है। तो अगर अब आपको क्या पता होना चाहिए? सिर्फ एक चीज कि यार ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये अट्रैक्टिव भी है, ये रिपल्सिव भी है। रिपल्सिव कब है? जब ये 0.5 फेम्टोमीटर से न्यूक्लियर सेपरेशन कम होगी। 0.5 फेम्टोमीटर तो बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है ना। लेट्स से ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये अब करीब आ रहे हैं। अब यहाँ पे डिस्टेंस 0.5 से कम हो गया। जो ही 0.5 से कम हुआ, यही स्ट्रांग फोर्स कहेगी भाई दूर हो जाओ, ये उनको और करीब नहीं होने देगी, ठीक है? तो इसका रोल क्या होगा? क्योंकि अगर वो और करीब हो गए तो वो क्रैश कर सकते हैं, ठीक है? उससे एटम के अंदर अनस्टेबिलिटी आ सकती है, इसलिए इसने उसको रोकना है। प्लस अगर 0.5 से ज़्यादा डिस्टेंस हो गया, 0.5 से ज़्यादा, तो ये क्या हो जाएगी? अट्रैक्टिव। नेगेटिव फोर्स अट्रैक्टिव होती है, तो ये अट्रैक्टिव हो जाएगी। ये कहेगी भाई किधर जा रहे हो? अगर वो अवे जा रहे हैं तो अब ये फोर्स उनको रोकेगी कि भाई आपने दूर नहीं जाना, ठीक है? सो मैक्सिमम फोर्स ये कहां पे है? मैक्सिमम 1। तो अगर आइडियली अगर डिस्टेंस 1 फेम्टोमीटर हो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में, किसी भी दो पार्टिकल, कोई भी दो पार्टिकल, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, किसी भी दो पार्टिकल के बीच में वो दो प्रोटॉन भी हो सकते हैं, वो दो न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन भी हो सकता है। एनी टू पार्टिकल्स के बीच में अगर डिस्टेंस 1 फेम्टोमीटर होगा तो ये फोर्स कितनी होएगी? मैक्सिमम होएगी। तो मैक्स, ये भी एमसीक्यू में ये भी चीज पूछता है, मैक्सिमम कहां पे है? 1 फेम्टोमीटर पे, ठीक है? ओके, तो उसके बाद अगर डिस्टेंस इससे ज्यादा हो जाएगा तो ये फोर्स क्या होगी? थोड़ी कम होना शुरू हो जाएगी, राइट? तो ये ग्राफ आप बना लो। ग्राफ एज इट इज आपने बनाना है और ग्राफ के दो पॉइंट्स को देखना है। अगर डिस्टेंस लेस देन 0.5 होगा तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव होएगी। अगर डिस्टेंस 0.5 से आगे 3 तक जाएगा, 3 तक, तो फिर ये फोर्स क्या होएगी? अट्रैक्टिव होएगी। मैक्सिमम कहां पर होएगी? 1 फेम्टोमीटर पर ये अट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है? क्लियर? दिस इज जस्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जस्ट एन इंफॉर्मेशन है ग्राफ से जो आपने देखनी है। क्यों भाई? हाँ, समझ आई बात की? आपको कह रहा हूं। हाँ, बताओ ये फोर्स मैक्सिमम कहां पर है? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? अट्रैक्टिव। तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या करती है? पार्टिकल्स को तर्जमा करने के लिए तो नहीं कहा था कि इसका तर्जमा कर दो। अट्रैक्टिव फोर्स क्या करती है? पार्टिकल्स को बाइंड टुगेदर रखती है, न्यूक्लियर की शेप जो है वो रिटेन रखती है। ओके ओके बेटा, तो थोड़ा सा मैं इसको ओके, ये सारी डिटेल जो मैंने बताई है ना आपको अभी, ये सारी यहां पे लिखी हुई है, ठीक है? ओके, आगे चलते हैं। कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेस।
तो अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्ट्रॉन्ग फोर्स का कंपैरिजन करते हैं। तो बेटा यहां दोबारा इस ग्राफ को देखो, सेम ग्राफ, आपने जो ग्राफ बनाया हुआ है ना बेटा, आपने जो ग्राफ बनाया हुआ है उसी के अंदर एक लाइन और ड्रॉ कर लो। कौन सी लाइन? ब्लू लाइन। ये ब्लू लाइन कौन सी है? ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सिर्फ रिपल्सिव होती है। दिस इज बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस ऑफ द प्रोटॉन्स। ठीक है, तो देखो अगर चार्जेस क्लोज टुगेदर हैं, 0.5 फेम्टोमीटर से कम है, तो देखो ये रिपल्सिव फोर्स क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसे ही है ना, देखो अगर चार्जेस आर क्लोजर टुगेदर तो फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बट जो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो ये फोर्स वीक होती जाएगी इसी तरह। तो इसको क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल कर्व कहते हैं। दिस इज एक्सपोनेंशियल कर्व। और ये जो है ये क्या है? इसको एसिम्पटोट भी कहते हैं। एसिम्पटोट मैथ की एक टर्म है जिसमें अगर लाइन एक्स एक्सिस को टच ना करे बल्कि उसके पैरेलल हो जाए तो वी से कि दिस इज एसिम्पटोट। एसिम्पटोट का मतलब है इन्फिनिट डिस्टेंस पे जाके ये जीरो होगी। तो एक बात जो हमें पता लग रही है, ये जीरो हो जाएगी 3 पे, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दिस इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में फोर्स कहां तक रहेगी हमें नहीं पता, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक रहेगी, वीक हो जाएगी बट रहेगी। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है उसका हमें पता है कि भाई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो एसिम्पटोट नहीं बनेगी, वो न्यूक्लियस से जो ही बाहर निकलोगे खत्म हो जाएगी वो वहां पे। तो वो इनफाइनाइट नहीं है, शॉर्ट रेंज है। तो समिंग इट अप, strong nuclear force is a short range force that exists only inside the nucleus, that binds all the nucleus together, and it has 2 roles to do. When particles get closer together, very closer, it become repulsive force, and when they started moving away it become attractive force. Mostly it is attractive, mostly attractive है। Electrostatic force क्या है? It's a long range force, it's very strong force, and it is used to only repel द पार्टिकल्स। ये अट्रैक्टिव नहीं हो सकती। ठीक है, ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये सब कुछ, ये जो मैंने आपको अभी बताया, ये सब कुछ यहां पे लिखा हुआ है। ओके, अल्फा एंड बीटा डिके इक्वेशंस। अच्छा बेटा, अल्फा बीटा गैमा याद है किसी को? हाँ, ये क्या है अल्फा बीटा गैमा? ये नाम है एनर्जी के। ये दीज आर द नेम ऑफ एनर्जी इमिटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव मटीरियल्स, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। ठीक है, आपको पता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या? अल्फा बीटा गैमा डिके इक्वेशंस। अच्छा मैं आपको बता रहा था यार, अल्फा बीटा गैमा जो है ये क्या है? दीज आर द रेडिएशंस, दीज आर द एनर्जी विच इज इमिटेड फ्रॉम नेचुरल एलिमेंट्स जो जमीन में से निकलते हैं। ठीक है, उनमें से एक इनविजिबल एनर्जी निकलती है। अब ये किसने डिस्कवर की थी? ये हेनरी बैकरल ने डिस्कवर किया था 1901 में। हेनरी बैकरल ने एक्सीडेंटली वो एक और एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो उसको पता लगा कि यार जो मैं रॉक्स यूज कर रहा हूं उसमें से तो कोई एनर्जी निकल रही है, क्योंकि उसने फोटोग्राफिक प्लेट्स रखी हुई थी, वो रॉक्स भी रखी हुई थी। सुबह जब वापस आया उसने फोटोग्राफिक प्लेट को कहीं और यूज किया, यूज करके डेवलप किया। उसने देखा फोटोग्राफिक फिल्म के अंदर बहुत सारे डॉट्स थे। अब वो साइंटिस्ट था ना, हमारी तरह होता, उठा के फेंक देता, नहीं यूज करता, होता साइंटिस्ट। उसने कहा यार ये क्यों हुआ है ऐसे, ये डॉट्स कहाँ से आ गए बीच में, ये तो नहीं आने चाहिए। दैट्स से अब आप लोग तो जाहिर है न्यू जनरेशन हो, आपको तो नहीं पता उन कैमरास का जिसके अंदर फिल्म रोल डलते थे। ठीक है, तो उसमें ये होता था कि अगर आप उसको लाइट में एक्सपोज करें तो वो सारा ब्लैकआउट हो जाता था, सारा इमेज खराब हो जाता था। ठीक है, या उसके ऊपर डॉट्स बन जाते थे लाइट की वजह से। ओके, तो एनीवेज उसने सोचा यार ये क्या हुआ है। उसने दोबारा रॉक्स के साथ जब एक्सपेरिमेंट किया तो ही केम टू नो कि इस रॉक में से कोई स्पेशल चीज निकल रही है, कोई एनर्जी निकल रही है जो कि एक आयनाइज कर रही है एक सोल्यूशन को। तो आयनाइज करने का मतलब है वो बड़ी एनर्जेटिक चीज है जिसने एक केमिकल को हिट किया और उस केमिकल की नेचर को चेंज कर दिया है। तो उसको उसने नाम दे दिया कि यार ये रेडिएशंस है, इनविजिबल रेडिएशन है जो सिर्फ कुछ सब्सटेंस में से निकलती हैं। साथ जो उसकी वाइफ है मैरी क्यूरी, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। ठीक है, और बाद में मतलब मेन डिस्कवरी में मैरी क्यूरी का भी हाथ है। और मैरी क्यूरी का आपको पता ही होगा, बाद में उसने कैंसर डेवलपमेंट के लिए बड़ा काम किया कि जो रेडिएशंस हैं इससे कैंसर और ट्यूमर वगैरह जो है वो ठीक किए जाएं। सारी उम्र उसने इसी में गुजार दी, 20-25 साल उसने इसमें गुजारे, और अल्टीमेटली उसकी भी डेथ इसी से हुई, रेडिएशन की वजह से, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा काम लैब में किया। उस टाइम
1930s में 20s में इतना इक्विपमेंट भी नहीं होता था, आजकल तो इतना इक्विपमेंट होता है कि आप बच जाते हैं चीज़ों से, उस टाइम तो इतना इक्विपमेंट भी नहीं था। तो वो खुद जो है इस रिसर्च में उसकी डेथ हो गई, और आपको पता है शी वॉज द ओनली वुमेन जिसको 2 नोबेल प्राइजेस जो है वो मिले थे। ठीक है, अच्छा बहरहाल एनीवेज, सो जब हेनरी बैकरल ने ये डिस्कवर किया तो उसको पता लगा कि यार देयर आर 3 टाइप ऑफ एनर्जीज दैट आर कमिंग फ्रॉम रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस, 3 टाइप्स। तो उसने उस एनर्जी को नाम दे दिए ग्रीक लेटर से, अल्फा बीटा गैमा। फिर उसने मजीद क्लोजली स्टडी किया तो उसको पता लगा कि अल्फा पार्टिकल की कुछ और प्रॉपर्टीज रिवील हुई, इसका चार्ज क्या होता है, इसका मास क्या होता है, इसकी स्पीड क्या है, इसकी आयनाइजिंग एबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। फॉर दिस आई विल रिकमेंड यू कि आप ओ लेवल्स की रेडिएशन वाला चैप्टर आप दोबारा पढ़ो, अल्फा बीटा गैमा वाली सारी चीज़ें वहाँ से पढ़ो, हाफ लाइफ भी वहाँ से पढ़नी है, ये भी पढ़ना है और रदरफोर्ड भी पढ़ना है। ये 3 चीज़ें आपने वहाँ से पढ़नी है, इधर भी हैं लेकिन वहाँ ज़रा बेसिक लेवल पे लिखी होंगी। अच्छा आगे चलते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। अच्छा अल्फा डिके, अल्फा डिके ये है कि जो अनस्टेबल एलिमेंट है उसको पेरेंट न्यूक्लियस कहते हैं, पेरेंट न्यूक्लियस, उसके अंदर से अल्फा निकल रहा है। अब अल्फा इज़ लाइक हीलियम न्यूक्लियस, इट इज़ लाइक हीलियम न्यूक्लियस, है नहीं बट इट इज़ लाइक हीलियम न्यूक्लियस। और हीलियम न्यूक्लियस में क्या है, 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। लाइक इसका जो चार्ज नंबर होता है He42 होता है, 2 इसका चार्ज नंबर है, 4 इसका मास नंबर है। इसका मतलब है कि ये जो पेरेंट न्यूक्लियस है इसने अपने 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन सेक्रीफाइस कर दिए हैं, या उनको कहा निकल जाओ घर से, यहाँ से, ये भी हो सकता है कि भाई जाओ ठीक है तुम्हारी ज़रूरत नहीं रही। तो जब ये यहाँ से बाहर निकला तो 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स निकल गए, तो इनका जो ग्रुप निकला इस ग्रुप को अल्फा पार्टिकल कहा गया। और ये चूँकि बहुत हाई स्पीड पे निकल रहा था इसलिए इसमें एनर्जी भी है, और अगर हम इसके रास्ते में आ जाएं तो ये जब हमें टच करेगा तो हमारी स्किन डैमेज करेगा, क्योंकि इसका आयनाइजिंग इफेक्ट है और ये डेंजरस है ये, ठीक है, दिस इज कंसिडर्ड एज वेरी डेंजरस रेडिएशन। अच्छा अब बेटा जब इसने 4 और 2 निकाल दिए ना तो पीछे जो न्यूक्लियस नया बच गया वो चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि उसका मास नंबर 4 कम हो गया, चार्ज नंबर 2 कम हो गया। तो अब जो नया बना उसको कहा डॉटर न्यूक्लियस, ठीक है, इसको कहा डॉटर न्यूक्लियस। देखो सन न्यूक्लियस नहीं कहा, डॉटर न्यूक्लियस कहा है, ठीक है, क्योंकि ये स्टेबल है, दिस इज स्टेबल, ठीक है। अच्छा नहीं मैं मेंटली स्टेबल की बात कर रहा हूं। अच्छा उसके बाद आप देखो आगे एलिमेंट्स को देखो, ये XAZ ये पेरेंट न्यूक्लियस है अनस्टेबल, इसको कहते हैं अनस्टेबल, पेरेंट न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। मतलब ये कि उसमें लेट से उस न्यूक्लियस के अंदर ओवर पैक्ड है न्यूक्लियॉन्स। अब बात सुन लो बेटा, देखो अनस्टेबल का मतलब है कि एक न्यूक्लियस के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूक्लियॉन्स हैं, अब वो इतने न्यूक्लियॉन्स को होल्ड नहीं कर सकता, ठीक है। अब उसने कुछ न्यूक्लियॉन्स खुद को स्टेबल करने के लिए उसने कहना है यार कुछ न्यूक्लियॉन्स निकल जाओ यहाँ से, ठीक है। तो इसलिए इसने स्टेबल होने के लिए अल्फा को कहा कि यार आप जाओ। तो अल्फा जब निकला तो इसमें से A-4 और Z-2 रह गया। आई एम प्रीटी मच श्योर ये इक्वेशन आपको याद होगी ये वाली। पोलोनियम, पोलोनियम 21284, तो पोलोनियम में से जब निकला 4 और 2 तो ये लेड बन गया, Pb इज लेड। तो लेड का जो नंबर है वो 208 है, जाहिर है 212 में से 4 निकाला तो 28 और 84 में से 2 निकाले तो 82। तो सिंपल अल्फा डिके इक्वेशंस ओ लेवल्स वाली आपने दोबारा करनी है, ठीक है, क्योंकि इनके क्वेश्चंस भी हैं। ओके बीटा डिके, नेक्स्ट इज बीटा डिके। अच्छा बीटा डिके क्या होता है बेटा? बीटा डिके होता है बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं न्यूक्लियस के अंदर से। इनफैक्ट अल्फा बीटा गैमा तीनों न्यूक्लियस में से निकल रहे होते हैं। अब बीटा पार्टिकल भी एक एनर्जी है, राइट। अब ये कैसे है? लेट्स से कि बीटा पार्टिकल में ये होता है कि एक एटम जिसके अंदर, ये लिखने वाली बात है ये वाली भी, मतलब शॉर्ट नोट में अपने लिख लो, बीटा के 2 टाइप्स होती हैं, बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में लिख लो बीटा पार्टिकल्स, नीचे टाइप्स, 2 टाइप्स, बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव, राइट। ओके नेक्स्ट, अब बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव ये पार्टिकल्स हैं, एनर्जीज हैं जो न्यूक्लियस के अंदर से निकलनी है। किस न्यूक्लियस में से बीटा पॉजिटिव निकलेगा, किस में से बीटा नेगेटिव निकलेगा, हमें कैसे पता? हमें इस तरह पता लगेगा कि अगर एक न्यूक्लियस जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं, क्या है, न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं, उसमें से जो है वो आपका निकलना है बीटा नेगेटिव पार्टिकल, ठीक है। ये भी नीचे लिख लो, जिसमें न्यूट्रॉन मोर देन, ऐसे शॉर्ट लिखना है, शॉर्ट सेंटेंसेस नहीं लिखने, n ग्रेटर देन p,
तो आगे एरो डाल के लिख दो बी नेगेटिव, उसमें से बीटा नेगेटिव निकलेगा। और इसका अपोजिट क्या होगा? जिस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बहुत ज्यादा होंगे उसमें से बीटा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव निकलेगा। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर से। ठीक है, लेकिन कैसे? अब होगा ये, लेट्स से कि अगर न्यूट्रॉन ज्यादा हैं, ठीक है, एक न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन ज्यादा हैं, ये बेटा एक नई चीज है, ये समझने वाली चीज है। अगर एक एटम के अंदर न्यूक्लियस में बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन्स हैं, स्टेबल न्यूक्लियस वो होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट इक्वल हो, वो स्टेबल होता है। जिसमें न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा हो और प्रोटॉन बहुत कम हो, वो अनस्टेबल होता है। अब एटम क्या करता है नेचुरली? वो कहता है यार मैंने स्टेबल होना है। अब स्टेबल होने के लिए वो न्यूट्रॉन्स को कहता है कि यार तुम सेक्रीफाइस करो अपने आप को। तो न्यूट्रॉन, क्योंकि तुम ज्यादा हो इसलिए तुमने सेक्रीफाइस करना है, तो न्यूट्रॉन क्या करता है? अपने आप को सेक्रीफाइस करता है। और न्यूट्रॉन जो है उसके अंदर क्वार्क्स होते हैं, तो क्वार्क्स कुछ ऐसा काम करते हैं कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोटॉन में। और साथ ही वो कुछ पार्टिकल्स इमिट करता है, 2 पार्टिकल्स इमिट करता है। एक पार्टिकल जो है उसको हम बीटा नेगेटिव कहते हैं, और एक पार्टिकल एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो, 2 नाम है, एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। इस पे एक अलग लेक्चर है जो मैं ऑनलाइन सारा दूंगा इन पार्टिकल्स के ऊपर, जो आपने अभी नहीं सुने हुए। ठीक है, तो बीटा नेगेटिव में क्या होगा? 2 पार्टिकल, देखो प्रोटॉन न्यूट्रॉन ने अपने आप को भाई प्रोटॉन में चेंज करना है, सिंपल सी बात है, आपने समझना है ये। न्यूट्रॉन ने प्रोटॉन में कन्वर्ट होना है, क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा है, एटम अनस्टेबल है, वो स्टेबल होना चाह रहा है। तो न्यूट्रॉन कहेगा चलो यार मैं सेक्रीफाइस करता हूं और मैं अपने आप को प्रोटॉन में चेंज करता हूं। करेगा कौन? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्वार्क्स से मिलकर बनते हैं, तो क्वार्क्स असल में काम कर रहे होंगे। ये न्यूट्रॉन के अंदर एक काम चल रहा होगा इनसाइड द न्यूट्रॉन। उससे क्या होगा? न्यूट्रॉन में से 2 पार्टिकल बाहर निकल जाएंगे। 2 पार्टिकल, न्यूट्रॉन में से 2 पार्टिकल बाहर निकलेंगे। एक पार्टिकल क्या होगा? बीटा नेगेटिव, और दूसरा क्या होगा? एंटी न्यूट्रिनो या एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। ये एक पार्टिकल है स्पेशल, शायद आपने पहले ना सुना हो। ठीक है, ये 2 पार्टिकल जब न्यूट्रॉन में से निकल गए ना, तो पीछे जो बच गया ना वो प्रोटॉन बच गया। इस तरह न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता जाएगा और बीटा पार्टिकल बाहर निकलते जाएंगे और हमें एनर्जी मिलती जाएगी उससे। ठीक है, समझ आ गई बात की? जब ज्यादा न्यूट्रॉन इस तरह हो गए और प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गए और नंबर बैलेंस हो गया प्रोटॉन न्यूट्रॉन, अब वो आइटम कहेगा भाई बस रुक जाओ, अब मैं स्टेबल हो गया हूं, अब मजीद एनर्जी रेडिएट नहीं करनी। ठीक है, डज दिस मेक सेंस? ओके, सो न्यूट्रॉन गया किस में? प्रोटॉन में, और साथ 2 चीजें निकाली, बीटा नेगेटिव, एंटी न्यूट्रिनो। ये इक्वेशन है एन पी, ये है क्या कहते हैं इसको, रिएक्टेंट, और ये प्रोडक्ट्स। तो न्यूट्रॉन गया प्रोटॉन में, 7 इलेक्ट्रॉन निकला और 7 एंटी न्यूट्रिनो। ये सिंबल है, वी की तरह सिंबल है, 7 ई लिखते हैं और ऊपर बार है। ये जो बार है ये एंटी की सिंबल है, एंटी की सिंबल ये बार है, और इलेक्ट्रॉन की सिंबल ई है, और न्यूट्रिनो की सिंबल ये न्यू है, न्यू, इसको न्यू पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। अब ये देखो, ये इसकी इक्वेशन है, आपको पता है ओ लेवल्स वाली इक्वेशन, एक्स ए जी, इसमें से बीटा निकला, बीटा 0 होता है, इसका मास नंबर नहीं होता और इसका चार्ज नंबर -1 होता है। एक सेकेंड, तो इसको फिलहाल छोड़ दो। तो आप देखो a माइनस 0 तो a आ गया, z -1 तो वो z+1 हो गया। तो बेटा जब बीटा पार्टिकल यहाँ से निकलेगा तो एक प्रोटॉन नंबर बढ़ जाएगा, बढ़ा ना? देखो एक प्रोटॉन नंबर बढ़ गया ना, z+1, तो एक प्रोटॉन बढ़ गया। 2 बीटा निकलेंगे तो 2 प्रोटॉन नंबर बढ़ जाएगा, 3 बीटा निकलेंगे तो 3 प्रोटॉन नंबर बढ़ जाएंगे। ये क्या चीज है? दिस इज, ये क्या है? एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, टॉप बॉटम और फिर ये। तो एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो 0 0 क्या मतलब? इसकी मास भी नहीं है, इसका चार्ज भी नहीं है। तो ये एक ऐसा थ्योरेटिक पार्टिकल है जो अभी तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन साइंटिस्ट ने खाली बताया है, खाली नाम दे दिया है कि यार ये एक पार्टिकल है, इसको एंटी न्यूट्रिनो कह दो। इसकी मास भी नहीं है, इसका चार्ज भी नहीं है, और ये क्या करता है? ये एनर्जी लेके वहाँ से बाहर आता है। तो 2 पार्टिकल्स निकलते हैं, बीटा और एंटी न्यूट्रिनो। और ये नीचे फिर कार्बन की एग्जांपल है, कार्बन नाइट्रोजन में चला गया, क्योंकि इसमें से बीटा निकला 14 ही रहा, लेकिन नीचे ये 6 फिर 7 बन गया, क्योंकि पहले प्रोटॉन 6 थे, अब 7 हो गए, तो ये 7 हो गए। इक्वेशन, अच्छा एक न्यूक्लियर इक्वेशन बैलेंस कैसे करते हैं? केमिकल इक्वेशन केमिस्ट्री में जैसे बैलेंस करते हैं इसी तरह न्यूक्लियर इक्वेशन बैलेंस करते हैं। तो अगर इधर 14 है
तो इनको सबको 14 + 0 + 0, इन सब का सम भी 14 होना चाहिए। इधर अगर 6 है तो इन सब का सम भी 6 होना चाहिए। तो 7 - 1 + 0 इज 6। तो एक न्यूक्लियर इक्वेशन के अंदर चार्ज नंबर भी बैलेंस होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का चार्ज नंबर सेम होता है, और एटॉमिक नंबर भी बैलेंस होता है। ठीक है, ओके। वी हैव जस्ट 10 मिनट्स नाउ। बीटा प्लस डिके। अब बीटा प्लस डिके देखते हैं। बीटा प्लस डिके, बीटा प्लस डिके क्या होता है? ऑपोजिट टू बीटा नेगेटिव। उसमें क्या हो रहा था? न्यूट्रॉन ज्यादा थे, इसमें क्या ज्यादा है? प्रोटॉन। तो एक अगर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बहुत ज्यादा है तो प्रोटॉन को कहा जाएगा यार तुम बहुत ज्यादा हो, तुम न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाओ। जब वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होंगे तो वो भी यही काम करेंगे, दो पार्टिकल निकाल देंगे बाहर। ठीक है, और वो दो पार्टिकल कौन से होंगे? एक होगा बीटा पॉजिटिव और एक होगा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। एंटी नहीं है इसमें। ठीक है, अब ये याद हम कैसे रखेंगे? उधर बीटा नेगेटिव था ना, नेगेटिव, तो इसलिए एंटी आ रहा था। एंटी के ऊपर भी बार नेगेटिव होता है। इसमें क्या है? इसमें पॉजिटिव, ये बीटा पॉजिटिव है, इसलिए इसमें ऊपर कोई नेगेटिव का साइन नहीं आएगा। तो ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो होगा। ठीक है, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन लिखनी है आपने। अच्छा, अगर मैं इसकी सिंबल फॉर्म लिखूं तो यहाँ 1 1 लिखूंगा, प्रोटॉन का चार्ज नंबर 1, मास नंबर 1 1 1। इधर लिखूंगा 1 0, इधर लिखूंगा 0 + 1, और इसमें 0 0 लिखूंगा। मतलब इसकी इक्वेशन भी आपको पता होनी चाहिए। ये दोनों इक्वेशन बाय द वे लिख लो आप लोग। एक ये इक्वेशन लिखो और एक ऊपर वाली लिखो, और साथ इसकी नोटेशन भी लिखो, चार्ज नंबर मास नंबर भी लिखो जल्दी से, ताकि आपको पता लग जाए कि ये कैसे लिखना है। यही इक्वेशन लिखनी है, आई एम रिपीटिंग इट। प्रोटॉन के साथ 1 1 लिखना है, न्यूट्रॉन के साथ 1 0 लिखना है, बीटा पॉजिटिव के साथ ऊपर 0 नीचे 1 लिखना है, और न्यूट्रिनो के साथ 0 0 लिखना है। बीटा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ही होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। वो बेटा आप मुझे आंसर सबमिट कराओगे, फिर आप बाद में जो प्रॉब्लम्स होंगी वो आप व्हाट्सएप में भेजोगे और मैं वो डिस्कस करूँगा। हाँ हाँ हाँ, लेकिन बेटा वो एक पेज पे करना था। मैंने आपको बताया था यार कि एक पेज पे खाली ABC जो आंसर्स हैं खाली वो लिखने थे, पूरे सोल्यूशन मुझे नहीं चाहिए, मुझे खाली आंसर्स चाहिए बस। सब लोग करके लाए हैं? एक पेज वो निकाल लेना बेटा, क्योंकि मैंने देखना है कि यार आप खुद कौन कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। मैंने जस्ट ये आइडिया लगाना है बस। ठीक है, नहीं पड़ोसियों से करवा लेते, खुद अगर नहीं हो रहे थे तो। ओके बेटा, होल्ड ऑन, बस 5 मिनट हैं, इजी हो जाओ। हाँ अच्छा होल्ड ऑन, नहीं बेटा 5 मिनट्स हैं, अभी क्लास हमारी 10:40 खत्म होनी है। न्यूट्रिनो इमिशन, बस ये नई चीज है, समझ लो इसको। न्यूट्रिनो इमिशन बेटा, जो अभी पीछे हमने इमिशन देखा है, बीटा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव, उसमें 2 स्पेशल पार्टिकल्स इमिट हुए थे, वो थे न्यूट्रिनो। ठीक है, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। अब ये एंटी न्यूट्रिनो क्या है? ये एंटी पार्टिकल है। एंटी पार्टिकल, आपको पता है हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल होता है। जिस तरह लिविंग थिंग्स में भी हम देखते हैं ना, लाइक से मेल फीमेल, इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर एटॉमिक लेवल पर भी 2 अपोजिट चीजें होती हैं। एक को कहते हैं मैटर और एक को कहते हैं एंटी मैटर। एक होता है पार्टिकल, दूसरा होता है एंटी पार्टिकल। ठीक है, अच्छा अब लेट्स से अगर एक न्यूट्रिनो है तो उसका अपोजिट क्या होगा? एंटी न्यूट्रिनो। अगर एक प्रोटॉन है तो उसका अपोजिट होगा एंटी प्रोटॉन। अगर एक न्यूट्रॉन है तो उसका अपोजिट होगा एंटी न्यूट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका अपोजिट होगा पॉजिट्रॉन। एंटी इलेक्ट्रॉन नहीं कहेंगे, उसको पॉजिट्रॉन कहते हैं। तो हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल होता है। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? इससे होता क्या? और एंटी पार्टिकल क्या होता है? एंटी पार्टिकल इज अ स्पेशल पार्टिकल दैट इज हैविंग सेम मास एज ओरिजिनल पार्टिकल बट ऑपोजिट चार्ज। तो अगर प्रोटॉन पॉजिटिव है, तो एंटी प्रोटॉन क्या होगा? नेगेटिव। मास प्रोटॉन के इक्वल होगी। अगर इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव तो पॉजिट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज होगा,
लेकिन मास सेम होएगी। तो एंटी पार्टिकल की मास पार्टिकल जितनी होती है, सिर्फ उसका चार्ज ऑपोजिट होता है। न्यूट्रॉन के साथ क्या होगा? न्यूट्रॉन का तो चार्ज ही नहीं है, उसमें क्या होगा? होगा एंटी न्यूट्रॉन है, उसकी मास सेम है, स्पिन ऑपोजिट। अब स्पिन हमारे सिलेबस में नहीं है। स्पिन का मतलब है ये सारे पार्टिकल स्पिन कर रहे होते हैं। तो न्यूट्रॉन जिस तरफ स्पिन करता है, एंटी न्यूट्रॉन उसके ऑपोजिट स्पिन कर रहा होता है, लेकिन ये वो नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है? ओके, सो एन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो इज अ टाइप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल with no charge and negligible mass which is emitted from the nucleus. The antineutrino is the antiparticle of neutrino. Electron antineutrino are produced during beta negative and electron neutrino are emitted during beta positive. जो मैं बता रहा हूं, बोल रहा हूं, जो लिखा हुआ है यही उसने आपसे क्वेश्चन में पूछना है। इसका फैक्ट बेस है, इसमें ट्रिकी क्वेश्चन नहीं बना सकता जैसा मैकेनिक्स में बनाता है। आप कहते हो हमने पढ़ा कुछ है, सिचुएशन कुछ आ गई, यहां ऐसे नहीं है। ये फैक्चुअल बेस है, जो लिखा हुआ है याद करना है, वही आना है, ठीक है? ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है और ये इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो है। इनमें डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस लग रहा है? विजिबल डिफरेंस देखने से बार्स है। एंटी न्यूट्रिनो जो है इसके ऊपर बस ये बार आ जाएगी। तो बेटा जो भी एंटी पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर ये बार आती है। प्रोटॉन अगर P होता है तो एंटी प्रोटॉन P ऊपर बार आ जाएगा, ठीक है? तो बार का मतलब है ये उसका एंटी पार्टिकल है, सिंबॉलिक, राइट? ओके, वन लास्ट थिंग, बस ये आखिरी चीज, ये वाली लास्ट थिंग। अच्छा बेटा, जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ना, लेट्स इमेजिन कि हमारे पास एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है, यूरेनियम, बहुत ज्यादा अमाउंट में है, 1 kg। उसमें से बिलियंस ऑफ अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। कितने? बिलियंस ऑफ अल्फा पार्टिकल सेम यूरेनियम में से। हाँ, उन सब अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जीज सेम होंगी। क्या होंगी? सेम होंगी, राइट? लेकिन अगर बीटा पार्टिकल निकल रहे हैं, एक और एलिमेंट है जिसके अंदर से बिलियंस ऑफ बीटा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, एक ही एलिमेंट में से निकल रहे हैं, सब बीटा पार्टिकल्स की एनर्जीज डिफरेंट होंगी, सेम नहीं हो सकती। बीटा पार्टिकल इज हैविंग रेंज ऑफ एनर्जी, किसी की ज्यादा होगी, किसी की कम होगी, किसी की बहुत ज्यादा होगी, किसी की बहुत कम होगी। लेकिन अल्फा कहेगा भाई सेम, जितने भी अल्फा निकल रहे होंगे सब की एनर्जी सेम होंगी, ठीक है? क्यों सेम होंगी? अल्फा डिके में कोई और पार्टिकल हमने निकाला था जो इक्वेशन देखी थी? नहीं ना, सिर्फ अल्फा ही निकला था ना, कुछ और तो नहीं था। बीटा में क्या हुआ था? बीटा में एक्स्ट्रा पार्टिकल कौन सा निकल रहा है? न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। तो सम टाइम ये होता है कि जब बीटा डिके हो रहा होता है तो न्यूट्रिनो जो होता है वो ज्यादा एनर्जी का शेयर ले जाता है। दो पार्टिकल निकल रहे हैं ना, अल्फा तो एक ही निकल रहा है, सारी एनर्जी अल्फा लेके आएगा। लेकिन इसमें ये होगा कि जो दो पार्टिकल निकल रहे हैं, बीटा एंड न्यूट्रिनो, तो किसी में बीटा ज्यादा ले जाएगा, न्यूट्रिनो के पास कम आएगी, किसी में न्यूट्रिनो ज्यादा ले जाएगा, बीटा के पास कम आएगी। दैट्स व्हाई वी से कि जो बीटा डिके है उसमें ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा रेंज ऑफ एनर्जीज है। बेटा प्लीज सुन लो, आई एम जस्ट क्लोजिंग दिस अप। बीटा पार्टिकल्स आर हैविंग रेंज ऑफ एनर्जीज। देखो यहां मैक्सिमम है, यहां कम है और यहां मिनिमम भी है, लेकिन यहां पे देखो ये डिस्क्रीट वैल्यूज है, इनको कहते हैं डिस्क्रीट वैल्यूज। कि लेट्स से नंबर ऑफ अल्फा अगर इतने निकल रहे हैं, सबकी एनर्जी सेम थी। अगर 1000 निकल रहे हैं सेम एनर्जी, किसी में से 2000 निकल रहे हैं सेम एनर्जी, क्योंकि एक्स एक्सिस पे एनर्जी है, ठीक है? तो अल्फा पार्टिकल हैव डिस्क्रीट एनर्जीज, फिक्स्ड एनर्जीज, व्हाइल बीटा पार्टिकल्स हैव रेंज ऑफ एनर्जीज। व्हाई दे हैव रेंज ऑफ एनर्जीज? व्हाई? अभी बताया है। क्यों भाई? सिमल बताओ, बीटा की रेंज ऑफ एनर्जीज क्यों है? उष्णा आप बताओ, सोफिया आप बताओ। न्यूट्रिनोज और एंटी न्यूट्रिनोज निकल रहे हैं बेटा, दो लोग हैं यार, मेरी बात सुनो। अगर इस रूम में कोई चीज पड़ी हुई है, खाने की कोई चीज है, एनर्जी है, एक बंदा आएगा तो वो एक अमाउंट लेके जाएगा फिक्स। लेकिन अगर एक बंदा अपने साथ किसी और को भी लगा ले, क्या हो यार, और वो ज्यादा उठा ले, तो मैं तो कहूंगा कि यार ये तुम लोगों ने क्या किया है, ये तो ज्यादा एनर्जी ले गए हो। फिर कोई और बंदा आए, दूसरा बंदा लेके आए, वो थोड़ी एनर्जी ले जाए, तो मुझे तो नहीं पता दूसरा बंदा कितनी एनर्जी लेके जाएगा। मैंने आपको कहा हुआ यार फिक्स लेके जाओ, लेकिन साथ दूसरा बंदा लेके आ रहे हो, उसका मुझे नहीं पता, वो तो डिफरेंट अमाउंट में लेके जा रहा है। तो बीटा पार्टिकल्स आर लाइक दैट, दे हैव रेंज ऑफ एनर्जीज बिकॉज ऑफ
neutrinos and antineutrinos.